29. Following data available for product for the month July 2003. Process 1, process 2. Opening work in progress nil. दोनों में opening work in progress कुछ भी नहीं है. Cost incurred during the month. Material 60,000 dash. Labor 12,000, 16,000. Factory overheads 24,000, 20,000. Units of production received in process 40,000, 36,000. Complete and transferred 36,000, 32,000. देखिए आप देख सकते हैं वहां पर प्रोसेसिंग 2 के लिए रिसीव्ड इन प्रोसेस 36,000 है. दैट इज नथिंग बट कंप्लीट एंड ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 36,000. ठीक है. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2,000 क्वेश्चन मार्क एंड नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस 2,000 and 1,500. Production remaining in process has to be valued as follows. Production remaining in process मतलब closing WIP is to be valued as material 100%, labor 50%, overhead 50%. There has been no abnormal loss in process 2. The word no is missing. There has been no abnormal loss. There has been abnormal loss in process में ऐसा दिया हुआ है. Actually there has been no abnormal loss ऐसा चाहिए. तो has been के बाद no लिखे वहां पर. There has been no abnormal loss in process 2. इसी का मतलब आप देख सकते हैं. फिर process 2 में closing WIP कितना होगा? 2,500. It is 2,500. That question mark. Prepare process account after working out missing figure and with detailed workings. अब देखिए दोनों प्रोसेस में इस बार क्लोजिंग WIP है. दोनों प्रोसेस में क्लोजिंग WIP है. प्रोसेस 1 में 2,000 एंड प्रोसेस 2 में 2,500. फॉर्चुनेटली दोनों में एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ना ही एबनॉर्मल गेन है, लेकिन दोनों में क्लोजिंग WIP है और दोनों की डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दी हुई है. इसका मतलब दोनों प्रोसेस के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट, valuation and that process 1 account. Same thing for your process 2 also. Got it? Proceed. Read fast. कि करके लाएंगे आप लोग? करेंगे? पक्का? दे दो होमवर्क में? ओके चलो. So this number 29 is homework. And let's नहीं ऐसा नहीं हो सकता. हाँ नहीं ये घर पे कर लेना, सिंपल है, उसके अंदर कुछ नहीं रहा. अब आप देखिए दिस मे 2014 वाला अगला क्वेश्चन. आई हैव टू फिनिश एटलीस्ट 30 and 31. अभी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला आज तो नहीं शुरू हो सकता, बट एटलीस्ट आई विल फिनिश दिस 30 and 31. और मैं कोई एक्स्ट्रा सेशन नहीं ले रहा हूँ, जो मेरा ऑफिशियल टाइम है उसी में ले रहा हूँ. ठीक है. नंबर 30. MJ Private Limited produced a product Sky which passed through 2 processes, namely process A and process B. The details for the year ending 31st March 2014 are as follows. Process A, process B. 40,000 units introduced at a cost of 3,60,000. Material consumed 2,42,000, 2,25,000. मतलब ये additional material consumption है. Direct wages 2,58,000, 1,90,000. Manufacturing expenses 1,96,000, 123,720. Output in units 37,000, 27,000. Normal wastage of input 5%, 10%. Scrap value per unit 15, 20. Selling price per unit 37.61. 80% of output of process A was passed on to the next process and the balance was sold. The entire output of process B was sold. Indirect expenses for the year was rupees 4,48,080. It is assumed that process A and process B are not responsibility center. Required. Prepare process A account and process B account. Prepare profit and loss account showing the net profit or net loss for the year.
IPCC May 2014, 8 marks. अच्छा, दो प्रोसेस वाला अकाउंट है, लेकिन इसमें कहीं पर भी इक्विवेलेंट यूनिट की बात नहीं है. सबसे पहले तो आप समझ लें, दिस इज नॉट ऑन योर इक्विवेलेंट यूनिट्स, एलिमेंट वाइज कॉस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर. हाँ, होमवर्क. अब इसमें क्या हुआ है, सीन द एडिशनल इंफॉर्मेशन. और बिफोर दैट प्रोसेस ए की हमने 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड. उसमें नॉर्मल लॉस कितना था उसका? 40,000 का 5% इज 2,000. मतलब 40,000 में से 5% मतलब 2,000 क्या है, तो 38,000 का प्रोडक्शन होना चाहिए. योर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 37,000. इसका मतलब 1,000 एबनॉर्मल लॉस है. ये एबनॉर्मल लॉस है. और वहीं आप देखेंगे प्रोसेस बी के लिए, अब जो प्रोसेस ए का आउटपुट है 37,000, वो प्रोसेस बी का इनपुट है 37,000. अब उसका नॉर्मल लॉस कितना है प्रोसेस बी का? 10%. तो 37,000 का 10%, 3,700. सो 37,000 माइनस 10% अगर आप करेंगे तो आई थिंक इट विल बी 33,300. 33,300 में से आपका एक्चुअल मतलब 33,300 आउटपुट आना चाहिए, बट द आउटपुट इज ओनली 27,000. फिर बाकी कहाँ गया? 6,300 इज व्हाट? एबनॉर्मल लॉस. ठीक है. अब देखिए, नहीं, हाँ वो नीचे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे गड़बड़ हो जाती कभी भी. ये देखिए, प्रोसेस ए का जो 40,000 है उसमें से 5% मतलब 2,000, दैट इज 38,000 चाहिए, लेकिन हमारा कितना है एक्चुअल में? 37. मतलब ये 1,000 इज एबनॉर्मल लॉस. अब ये 37,000 का, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर हमने मिस कर दी, इसलिए ध्यान दो एक बार फिर से. एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए क्या दिया. 80% ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए वाज पास ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस and balance was sold. The entire output of process and balance was sold. तो इसका मतलब है 37,000 में से 80% हमने ट्रांसफर किया प्रोसेस बी को एंड 20% इज सोल्ड. सो 37,000 का 20% इज 7,400 बेच दिया, और बचा कितना फिर? हाँ, 29,600 प्रोसेस बी को गया, नॉट 37,000 पूरा, ओनली 29,600. उसमें से नॉर्मल लॉस कितना? 10% इज नॉर्मल लॉस 2,960. इसका मतलब यहाँ आउटपुट होना चाहिए था आपका कितना? 26,640. व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट इज 27,000. इसका मतलब दिस डिफरेंस इज योर एबनॉर्मल गेन है. फिर आर गेटिंग हियर? समझ में आएगा? आई थिंक हमने इस टाइप के प्रॉब्लम किया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 35 या 36 ऐसा कोई लास्ट वाला जो मैंने करा था फर्स्ट टाइम पहले प्रोसेस में. इसमें खैर जाने दीजिए, आपको आप भूल गए. नंबर 35 ना, ये हमने कराया था. ओके, चलिए फिर. सो एक कच्चा आप लिख लीजिए, ऐसा एक रफ वर्किंग नोट, फिर हम डिटेल में करेंगे इसको.
ओके बनाइए अब यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। पहले तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पर आपको कोई स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड देन एलिमेंट वाइज कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन नथिंग इज गिवन, simply you have to prepare 2 process account and 1 profit and loss account, and here again that process is not your responsibility center, ठीक है। अगर responsibility center अगर होता तो फिर उस केस में अकाउंट कैसा बनता, that is what nothing the portion of your inter process profit, जो कि हमारे इसके बाद वाले क्वेश्चंस हमको करने हैं। सो बनाइए प्रोसेस ये अकाउंट, process A account, $40,000, 3,60,000. Again there is 2 material, 2,42,000, 2 wages, 2,58,000, 2 manufacturing expenses, 1,96,000. Then by normal loss, 2,000 units और इसकी scrap value है 15, so 2,000 into 15 is 30,000. Then by abnormal loss, 1,000 units. By process B, जो 37,000 थे उसका 80%, that is 29,600, ठीक है। और बाकी की जो 20% मतलब जो 7,400 जो हमने सेल किए उसकी कॉस्ट हम ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 7,400 यूनिट जो कि हमने डायरेक्टली सेल कर दिए इसी स्टेज पर जो हमने सेल कर दिया वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। यस, आपको क्या करना है, फाइंड आउट द नेट कॉस्ट पर यूनिट, वो जो आएगी मल्टीप्लाई बाय 1,000, 29,600 एंड 7,400। इज इट 27? इज इट? कीजिए मतलब आप लोग। दिस टाइम नेट कॉस्ट पर यूनिट इज नथिंग बट डेबिट के चारों के एडिशन कर दीजिए, उसमें से 30,000 लेस कर देना एंड डिवाइड बाय 40,000 माइनस 2,000, सो हियर आई कैन से नेट कॉस्ट पर यूनिट 3,60,000 प्लस 2,42,000 प्लस 2,58,000 प्लस 1,96,000 माइनस 30,000 divided by 40,000 minus 2,000, कितना आता है? It is rupees 27, is it? So फिर ठीक है, 27 into 1,000,
ये abnormal loss का valuation 1000 to 27 27,000 then 27 into 29 600 कितना था ये? शाबाश 7,99,200 and P&L को 1,99,800 is it? टोटल आप कर लें 10 लाख 40,000 is the number of units. 10,56,000. क्लियर? अब बनेगा आपका प्रोसेस टू अकाउंट. प्रोसेस टू कहाँ बनाऊं मैं? सचिन जरा झूम करके दिखा देना इसको. हाँ बोलिए. सेलिंग प्राइस. हाँ तो अभी देखो यहां से तो मैंने सिर्फ इसकी कॉस्ट ट्रांसफर कर दी है. जब मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा, हमें P&L भी करना है. जब मैं P&L करूंगा तो P&L को डेबिट आएगा टू प्रोसेस ए अकाउंट 1,99,800 और उसको उस पिन को क्रेडिट जाएगा बाय सेल्स. और जब बाय सेल होगा ना तो इट विल बी 7,400 इनटू सेलिंग प्राइस, ताकि वो जो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा. अब बात समझे? यहां पर मैं यहां पर सेलिंग प्राइस से क्रेडिट नहीं करूंगा, यहां पर मैं कॉस्ट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करूंगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बाय सेल्स दिखा दूंगा, ताकि उस 7,400 यूनिट की कॉस्ट P&L के डेबिट में आएगी और सेल्स P&L के क्रेडिट में आएगा और उस P&L में उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा. दिस इज व्हाट द मीनिंग दैट दिस प्रोसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. मतलब आपको इन प्रोसेस अकाउंट में प्रॉफिट नहीं दिखाना है, जो भी प्रॉफिट आएगा आपके P&L में आएगा. गॉट इट? अगर ये डिपार्टमेंट ये प्रोसेस अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हम मान ले तो इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रॉफिट इसी प्रोसेस में दिखाना होगा. और वही हमारा एक क्वेश्चन के बाद वही वाले सम से आगे फिर क्लियर है. तो प्रोसेस P&L अकाउंट जब बनेगा तब ये डेबिट होगा वहां पर. नाउ प्रोसेस बी अकाउंट. प्रोसेस बी अकाउंट सॉरी बस डेबिट में आएगा टू प्रोसेस ए 29,600. The amount is 7,99,200. Then, here again, there is a material cost. To material 2,25,000. To wages 1,90,000. To manufacturing expenses 1,23,720. 123,720. Then by normal loss जो कि 1,500 units, sorry not 1,500 is 10%, it was 2,960 और इसकी स्क्रैप वैल्यू 20 है. सो 2,960 into 20 59,200. Then buy हमने सेल कर दिया ना बाकी के सारे यूनिट्स. आउटपुट कितना है आपका यहाँ पर 27,000. सो वो जो है 27,000 वो हमने सेल कर दिया. तो इन शॉर्ट देखिए ये जो 27,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड सोल्ड है तो ये हमारा फिनिश गुड्स है. दैट विल ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स आगे कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल आगे P&L को जाती है. याद है क्या?
कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? मटेरियल में। फिर प्रभु का लाख लाख शुक्र है, आपको चैप्टर याद आ गया। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में देखा था दैट हियर वी ट्रांसफर वर्किंग प्रोग्रेस का बैलेंस जाता है बाय फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का जाता है कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ जाता है पी एंड एल। तो इसमें तो बीच में कोई ओवरहेड्स है ही नहीं, इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे बाय पी एंड एल को। 27,000 उसकी कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी होगी। एंड टू एबनॉर्मल गेन, आई होप आपने ये कंसिडर किया होगा। दैट वाज 360 यूनिट्स ना, मैंने वर्किंग किया था ये पहले। सो फर्स्ट फाइंड आउट योर कॉस्ट पर यूनिट। 48 कंफर्म। ये डेबिट की एडिशन, is it 48 ना? So 48 into this 27,000 कितना आया? 12,96,000 and same 48 into 360 17,280। हाँ 13 लाख 13,55,200 29,960 इज इट। और इस बार आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी करना है। मैं जरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां कर लेता हूं। बट बिफोर दैट you please prepare abnormal gain account। पहले आप करेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट, क्योंकि एबनॉर्मल गेन में से डिफरेंस पी एंड एल को जाने वाला है। सो प्लीज प्रिपेयर एबनॉर्मल गेन अकाउंट फर्स्ट। और इधर एबनॉर्मल लॉस भी था ना, और वो भी अकाउंट करना पड़ेगा। ओहो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। हियर एबनॉर्मल गेन में it's by process B account 360 units 17,280 and abnormal loss में to process A account it was 1,000 units 27,000। now abnormal gain के लिए डेबिट में क्या आएगा? टू पी एंड एल नॉर्मल लॉस, क्योंकि ये यूनिट्स हम लोग एज अ लॉस क्वांटिटी पकड़ के चल रहे थे। इसका मतलब ये हम लोग एज अ स्क्रैप करके बेचने वाले थे। तो पूरा का पूरा 17,280 हमारा गेन नहीं है, क्योंकि इसकी नॉर्मल लॉस करके स्क्रैप की बेचने की हमारी अपॉर्चुनिटी गई। सो दैट विल बी एडजस्ट अगेंस्ट नॉर्मल लॉस अकाउंट 360 यूनिट्स। दिस कैन बी सोल्ड एट ₹20 ना। So that is 7,200, 360 into 20. And the difference is to profit and loss account. 10,080. और एबनॉर्मल लॉस, ये तो एडिशनल लॉस है हमारा,
So these units will sell. So this is by cash will sell these 1000 units at rupees 15 ना. Process 1 की scrap value rupees 15 है. And the difference is by profit and loss account 12,000. 12,000. Is it? And now please prepare your profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट जो होगा वो सबसे पहले, तो ये जो हमने लिया था बाय पी एंड एल प्रोसेस ए का, ये आएगा आपका टू प्रोसेस ए अकाउंट. डोंट कंसिडर क्वांटिटी, टेक इट ओनली कॉस्ट 199,800. सिमिलरली आपने प्रोसेस बी को भी क्रिएट किया हुआ है बाय पी एंड एल, वो भी आएगा डेबिट में. टू प्रोसेस बी अकाउंट इट वाज 12,96,000. अब आपके प्रॉफिट एंड आपके प्रोसेस बी को देखिए क्रेडिट में बाय पी एंड एल है, वो यहाँ गया डेबिट में टू प्रोसेस बी 12,96,000. इज इट? देन अब जो जो आपने सेल किया वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट होगा बाय सेल्स. देखिए प्रोसेस ए में आपने 7,400 यूनिट सेल किए एट रुपीज कितना था वो 37. यहां पर आएगा वो क्रेडिट है ना 37. कितना अमाउंट 2,73,800. अगेन बाय सेल्स प्रोसेस बी में, प्रोसेस बी के 27,000 हमने बेचे एट रुपीज 61. 16,47,000. देन जो एबनॉर्मल गेन था वो यहां पर आएगा क्रेडिट में बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट 10,080. और एबनॉर्मल लॉस जो है वो डेबिट में आएगा टू एबनॉर्मल लॉस 12,000. इज इट 12,000. और कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है क्या? बी एडजस्टमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,48,080. तो ये हमने किसी भी प्रोसेस को डेबिट नहीं किया, ये हम लोग कॉमन पीएनएल को डेबिट कर देंगे. सो दिस इज टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. कितना है वो 4,80,000 80,080 4 lakh. Okay, 4,48,080. I think 880 जाएगा. फैब्रिकेटेड प्रॉब्लम ही है. हाँ, प्रॉफिट या लॉस? लॉस. लॉस है कि प्रॉफिट? देखो क्रेडिट में डिफरेंस आया तो लॉस कहते हैं, डेबिट में आया तो नेट प्रॉफिट. पक्का? तुम्हारा भरोसा नहीं भाई, तुम लोग कुछ भी इनोवेशन कर सकते हैं. बाय नेट लॉस 25,000. गॉट इट? क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को? स्टार 2-4 ज्यादा कर देना, 5 स्टार, स्टार प्लस प्रॉब्लम. स्टार प्लस फिर आप 7 स्टार करो, 10 स्टार करो. अब यहां से आपके स्टार एग्जाम में आए तो इज इट? हमने ना इसी टाइप का आई थिंक नंबर 35, हाँ 35 हमने किया हुआ है इसी टाइप का. पूरा दिखा देंगे. ओहो, आज क्लास हो गया.
Then as far as problem number 31 is concerned, ये बिल्कुल जैसा भी हमने किया नंबर 30 बिल्कुल उसी टाइप का है. आप लोग कोशिश करें, आपको आएगा जरूर. May 2012 8 marks. So I am giving this number 31 for homework. दो प्रॉब्लम होमवर्क में दी आपको नंबर कौन सा 29 ना, एक 29 एंड 31. दिस टू फॉर होमवर्क. ठीक है. So fine, we'll stop here. We'll continue tomorrow, and tomorrow we'll complete this inter process profit, and then this chapter will be over.